Hello students, good morning. How are you? I think you are fine. Dear students, after the third duty, this is the first class. So I am going to teach you one new lesson, that is from course book chapter 10. Okay? All of you open page number 124, and in chapter 4 there is chapter, the name of the chapter is what? You can see on the board, the banyan tree, बरगद का पेड़. Okay? And in this story, you will see what? A fight between a snake and a mongoose. This is the main theme of the story. The story is about a fight between a snake and a mongoose. In the previous chapter, the desert animals, you have heard about how the mongoose killed snake. Okay? You know well that the mongoose make the nuisance of themselves. The mongooses make the nuisance of themselves, and they make the snake tired, and then they dive on to kill snake. Here also you can see the same thing, but that is in a vivid, in a clear picturization. Okay? Who are the spectators of the fight? Author, Ruskin Bond, a crow, and Moynihan. Okay? Now let us know something about author Ruskin Bond. So this story is written by Ruskin Bond. He was born on 19th May 1934 in UP, and he is still alive. Okay? His parents, Aubrey Bond and Edith Clark. Education, Bishop College, Bishop Cotton School, Shimla. Okay? His education was in Bishop Cotton School, Shimla. He has written so many books. Among the important books, I have written just two. Our trees still grows in there. A flight of pigeons. He has made so many movies and TV shows. Here are some of them. Sarkumaf, The Blue Umbrella, The Black Cat. Okay. Zunun, Ekta Rashti 2. So these are the movies and TV shows. The stories of Ruskin Bond has been made. Okay, movies and TV shows are these are very, very important. Already, some of the works you have seen, I think. Okay, I have also seen some of them. So now coming to the story. Okay, have you seen a mongoose? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. Okay, now here are the main thing about the fight between a mongoose and a snake. The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India, and the outcome is largely the same. Okay, मतलब क्या है, कोबरा और मंगूस का जो लड़ाई जो है इंडिया भर में सब जगह में सब कोई देखते रहते हैं, और रिजल्ट क्या आता है, नतीजा क्या आता है, सबको पता है. The mongoose is not immune to the venomous bite, but is faster and quicker in motion than the snake. ऐसा नहीं है कि मंगूस जो है वो लोग कोबरा के जहर से मरेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मगर मंगूस लोग इतना फास्ट है अपना रिएक्शन में कि कोबरा का जहर उसके शरीर में डालने का मौका ही नहीं मिलता है कोबरा को. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike, but the quick moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction before the snake can get into striking position again. क्या होता है, कोबरा अपना चेहरा को इस तरह करते हैं जो कि हमेशा डिफेंस में रहते हैं, मतलब संभालना है उनको, और इस तरह रहते रहते कभी कभी इतना तुरंत बिजली की तरह इतना तुरंत वार करते हैं मंगूस के ऊपर में, और लगता है जैसे मंगूस को कोबरा ने मार ही दिया. मगर मंगूस इतना क्विक अपना मूवमेंट चेंज कर देते हैं कि कोबरा का वार मिस कर जाते हैं मंगूस को. ठीक है. This constant movement tires and discourages the snake,
and the mongoose is finally able to live in close and bury his teeth in the snake's neck, usually severing the joints of his body. तो क्या होता है, इस तरह सांप ने बार बार वार करते करते थक जाते हैं और थक जाने के बाद वो हताश भी हो जाता है और उसी समय मंगूस क्या करते हैं, मंगूस मतलब जानते हैं क्या, नेवला जो सांप के साथ लड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं उसी समय में अपना अंतिम वार करते हैं और वो अपना दांत को सांप के गर्दन के ऊपर में बैठा देते हैं और उसका रीढ़ का जो हड्डी है उसको तोड़ देते हैं, मतलब सांप का अंत हो जाता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन ए बैनन ट्री, तुम देखे होंगे बरगद का पेड़। दिस इज ए स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज ए यंग बॉय व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बैनन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। इस कहानी में देखोगे लेखक का जो दादाजी है उनका घर में आंगन में एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ में बैठे बैठे लेखक जो है किस तरह नज़ारा देखे थे, क्या चीज़ देखे थे, वही इस कहानी में है। Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine. जितना सारा घर मकान है, ग्राउंड्स है, वो मेरा दादाजी का था, मगर वहाँ पे जो बरगद का पेड़ वो मेरा था। Chiefly because grandfather at 65 could no longer climb, क्योंकि मेरा दादाजी का उम्र 65 था और 65 वर्ष की उम्र में कोई बरगद का पेड़ में नहीं चढ़ सकते, इसलिए वो वाला पेड़ मेरा ही था। Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. इस बरगद का पेड़ का इतना सारा टहनी था, इतना सारा जड़ था जो कि मिट्टी में लग चुका था और वो जड़ मिट्टी में लग जाने के बाद उस बरगद के पेड़ के अंदर भी इतना सारा जगह हो गया था जहाँ पे मेरा घूमना बहुत अच्छा लगता था और मेरा सबसे पसंदीदा जगह बन गया था। Among them were squirrels and snails and butterflies, और उस जगह में बहुत सारा जीवों का जगह बन गया था, जैसे कि बटरफ्लाइज, स्नेल्स, स्क्विरल्स मतलब गिलहरियाँ, ओके, शंभुक, और क्या है बटरफ्लाई मतलब तितली। The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dera in itself. ये जो बरगद का पेड़ है ये बहुत पुराना है और मेरे दादाजी से भी ज़्यादा उम्र वाला, और की और देहरादून जो है उससे भी शायद पुराना होगा। I could hide myself in its branches, behind which green leaves and spy on the world below. मैं इस बरगद के पेड़ में अपने आप को छुपा लेता था और इस हरा भरा पत्ता के पीछे से मैं बहुत सारे को छुप छुप के देख सकता था, जैसे कि स्पाई लोग देखते हैं, जासूस लोग देखते हैं। My first friend was a small grey squirrel arching his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent my invasion of his privacy. मेरा पहला जो दोस्त वो था एक भूसा कलर का, ओके, एक गिलहरिया जो कि हवा में सूंघ के मुझे पहले अपने आप मतलब उस गिलहरी को देख रहा हूँ, उसका विरोधिता करते रहा, मतलब गिलहरियों को मैं देख रहा हूँ, वो नहीं चाहते थे मैं उसको देखूं। But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. मगर जब देखे मेरे हाथ में बुलेट वगैरह नहीं है, बंदूक वगैरह नहीं है, धीरे धीरे वो जो गिलहरिया है वो मुझे दोस्त की तरह बनने लगे। He became friendly, and when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking motions from hand. और धीरे धीरे जब मैं उनके लिए केक वगैरह बिस्किट वगैरह लाते गया, छोटा छोटा टुकड़ा, और धीरे धीरे वो साहसी बनने लगे और क्या किए, मेरे हाथ से भी कुछ कुछ टुकड़ा खाने के लिए कोशिश की। Before long he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. और बहुत कम समय में ही
उसको क्या हो गया, मेरे पॉकेट में भी वो घुसना चालू कर दिए और उस पॉकेट में जो जो कुछ मिलता था वो खाना चालू कर दिए. He was very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. तो इस गिलहरी तो मेरे दोस्त बन गया था, मगर इस गिलहरी का जो इतना सारा दोस्त और रिलेटिव्स थे वो लोग सोचे ये गिलहरी शायद बुद्धू है और वो लोग इंसान को भरोसा नहीं कर सकते थे, इसलिए बाकी गिलहरी लोग जो है मेरे पास नहीं आते थे. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into the branches. जब बसंत मौसम आया तो उस समय में उस बरगद का पेड़ में छोटा छोटा जो फल है, जो कि बरगद का फल जब भर गया तो पंछी लोगों का वहाँ पे भीड़ जम गया. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, myna, crows, squabbling with each one another. तो क्या क्या पंछी आने लगे, बुलबुल, पैरट्स, मोइना, क्रोज, इतना सारा पंछी अपने आप आने लगे और सबका आवाज जो है एक साथ में मिलकर जैसे वो लोग झगड़ा करते हैं ऐसे लगना चालू हो गया. ड्यूरिंग द fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. और बरगद का पेड़ में जब छोटा छोटा फल होने लगा सबसे नॉइजी प्लेस मतलब सबसे शब्द ज्यादा होने वाला जो जगह वही बरगद का पेड़ बन गया. Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. बस इस बरगद का पेड़ की आधा ऊंचाई तक जाना पड़ता था, जहाँ पे मैं अपना एक अड्डा बना लिया था, जहाँ पे अपना एक बैठने का सोने का जगह एक बना लिया था और हर दोपहर में मैं वहाँ पे जाके क्या करता था, विश्राम लिया करता था, जबकि मौसम थोड़ा ज़्यादा गर्मी नहीं था तब. I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. मेरा घर से एक तकिया में ले गया था और उस तकिया को लेके उस बरगद का पेड़ के ऊपर में जहाँ पे मैं अपना जगह बनाया था वहाँ पे जाके मैं बहुत सारा किताब भी पढ़ता था. ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल were some of the books that made up my banyan tree library. उस बरगद के पेड़ के ऊपर में बैठे बैठे मैं अपना एक लाइब्रेरी बना चुका था जो कि कहानी की किताब था वहाँ पे. और इस तरह किताब जहाँ पे इस तरह कहानी है जैसे कि ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल, इस तरह जो कहानी का किताब वहाँ पे मैं लेके गया था. वो लाइब्रेरी जैसे बन गया था, मतलब वहाँ पे किताब का पहाड़ लग गया था, मैं वहाँ पे बैठे बैठे पढ़ता था. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. जब मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं होता था, मैं वहाँ से झाँक के पूरा पृथ्वी जो है नीचे सब में देखता था. And on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. इस तरह एक दोपहर के बाद जो समय होता है आफ्टरनून, उस समय में मैं एक दिन ऐसा एक नज़ारा देखा जो कि इंडिया में दिखा जाता है इधर उधर जंगल में, जो क्या था, एक मंगूस और एक कोबरा का लड़ाई. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. तो गर्म हवा जो इधर उधर से बहने लगा, जो कि गर्मी के मौसम में आते हैं, इसके कारण सब कोई घर के अंदर में चले गए. कोई भी इंसान इधर उधर नहीं दिखता था. ओके, जो कि बगीचा को देखभाल करते हैं गार्डनर जो है, माली लोग जो है, वो भी घर में चले गए. ठीक है. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out the clump of cactus. मैं भी पेड़ में बैठे बैठे थोड़ा सा नींद आ रहा था मेरा. मैं सोच रहा था गर्मी के कारण थोड़ा जाना पड़ेगा, तालाब में जाके थोड़ा नहा के आऊँगा और मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा. और रामू और भैंस लोग जो है वो लोग भी अभी तालाब में शायद नहाते होंगे और मैं भी जाके वहाँ पे नहा लूँगा. ऐसे सोच रहा था मैं.
पेड़ के ऊपर मैं बैठे बैठे नींद आ रहा था, उस समय मैं सोच रहा था, और उसी समय देखा एक बहुत बड़ा सा कोबरा, एक किस्म का सांप होता है, ठीक है। तो कोबरा जो कि कैक्टस नाम का पेड़ होता है, जहाँ सूखा जगह है वहां पे, वहां से एक कोबरा निकल के आया, और उसी समय में एक मंगूस भी झोप से, झाड़ी से वो सीधा सीधा कोबरा के सामने आ गया। मैं देखा कैक्टस के अंदर से एक कोबरा निकला और झाड़ी से एक मंगूस किसी समय उसके सामने आ गया। In a clearing beneath the banana tree, in bright sunshine, they came face to face. नीचे साफ सुथरा जगह था और सूरज का रोशनी भी था, और उसी समय में एक साफ सुथरा जगह में कोबरा और मंगूस आमने सामने है। The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. कोबरा को पता चल गया ये जो मंगूस जो सामने खड़े हैं, 3 फीट लंबा मंगूस जो खड़े हैं, वो एक बहुत अच्छा योद्धा है और बहुत खतरनाक भी है। But the cobra too was a skillful and experienced fighter. और ये जो कोबरा जो है ये भी अच्छा लड़ाई करने वाले हैं, उसका अनुभव भी है। He could move swiftly and strike with the speed of light. और कोबरा भी बहुत जल्दी अपने आप को हिला सकते हैं इधर उधर, और वो रोशनी जितना जल्दी चलते हैं उससे भी जल्दी वो चल सकते हैं, या तो उसके साथ भी चल सकते हैं। And the sacs behind his long sharp fangs were full of deadly poison. और इसका जो फन है, फन के नीचे जो मुखरा है, मुखरा के अंदर में एक बैग है, जिस बैग में खतरनाक जहर भरा हुआ है, वो भी इसको पता है। इस जहर को डालने से सब कोई घायल हो सकता है, इसको भी पता है। It was to be a battle of champions. अभी जो चलने जा रहा है, अभी जो होने जा रहा है, 2 चैंपियन के बीच में लड़ाई। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out. सांप का जैसा आवाज होता है, उस तरह आवाज को हिस कहते हैं, हिस। तो उस तरह आवाज करते हुए अपना काटा हुआ जो जीभ जो है उसको निकालते हुए, अंदर और बाहर करते हुए, कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet off the ground. 6 फीट लंबा कोबरा का 3 फीट कम से कम ग्राउंड के ऊपर से उड़ गया है। मतलब 6 फीट लंबा कोबरा का 3 फीट जमीन से ऊंचा में उड़ गया है। And spread his broad spectacled hood, और अपना जो फन जो है, जो देखने में बहुत सुंदर है, वो अपना हुड को, फन को फैला दिए। The mongoose boosted his tail, और नेवला जो है, मंगूस है, वो भी अपना पूंछ को थोड़ा मोटा कर लिए। The long hair on his spine stood up, और रीढ़ के हड्डी के ऊपर में लंबा लंबा बाल जो वो भी खड़ा हो गया है। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. ये जो लड़ाई करने वाला 2 जन है प्रतिद्वंदी, ये लोग मेरे वहाँ पे जो हाजिर होने का बारे में उन लोगों को पता नहीं था। मैं जो देख रहा हूँ उन लोगों को, उन दोनों को पता नहीं था, मगर बहुत जल्द ही 2 और भी देखने वाले जो है वो लोग है, इन दोनों को पता चल गया। मतलब कोबरा और नेवला को पता चल गया कि मेरे अलावा और भी 2 जन हैं देखने वाले। One was मैना, the other a jungle crow. एक था मैना और एक जंगल का कौवा। They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. ये दोनों पहले से देख चुके थे, ये दोनों मंगूस और कोबरा जो है किस तरह अपने आप को तैयारी कर रहे हैं लड़ाई के लिए, और वो लोग भी कैक्टस में बैठे हुए हैं इस लड़ाई का नतीजा क्या होता है उसको देखने के लिए। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अगर ये दोनों खाली लड़ाई को देखते तो सब कुछ ठीक ठाक चलता, मगर ये नहीं हुआ। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. कोबरा अपने आप को एक साइड से दूसरा साइड में हिला रहे हैं और अपने आप को संभाल रहे हैं, और वो चाहते हैं नेवला को थोड़ा पजल करने के लिए ताकि वो वार कर सके नेवला के ऊपर में। ओके,
But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes. मगर नेवला भी जानते हैं उनका जो प्रतिद्वंदी है, उनका आँख जो कि कांच की तरह दिखता है, साफ सुथरा, उस आँख में क्या है और वो क्या करना चाहते हैं वो भी जानते हैं. And refused to meet them. और नेवला भी उस सांप के आँख में आँख डालना बंद कर दिए और वो नहीं चाहते हैं उसके साथ साथ हिलने के लिए. ठीक है. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. और सांप के साथ सांप हिल रहा था, मगर मंगूस जो नेवला जो है अपने आप को नहीं हिलाए, वो अपना दृष्टि को एक जगह में स्थिर किए. कौन सी जगह में? सांप का जो फन होता है उस फन के पीछे वाला हिस्सा जो है जहाँ पे उसको वार करना है. Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. क्या किए? मंगूस मतलब नेवला ने तुरंत सांप के सामने गए और सामने जाके तुरंत एक साइड में हिल गए. Immediately the cobra struck. और तुरंत उस कोबरा ने क्या किया? नेवला के ऊपर में वार किया. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. और उस कोबरा का फन इतना जल्द उस नेवला के ऊपर में आ गया और मैं सोच रहा था अभी इस नेवला को कोई नहीं बचा पाएगा. क्यों? क्योंकि सांप का जहर से नेवला लोग बच नहीं सकते हैं अगर लग गया तो, मगर नेवला लोग इतना तुरंत अपना आप को हटाते हैं कि वो कभी सांप उसको वार नहीं कर पाते. यही एक अलग सा चीज है. ओके. तो लेखक रस्किन बर्ड ने सोचा अभी तो सांप कोबरा ने मार ही दिया शायद नेवला को. But the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. मगर नेवला ने इतना जल्द अपने आप को हटा के दूसरा साइड में चले गए और कोबरा के जो हुड जो है, हुड का पीछे वाला हिस्सा में जाके तुरंत अपना क्या किए? अपना एक बाइट जो है, अपना एक क्या बोलते हैं दांत बैठाना जो है वो बैठा दिए. ठीक है. और बैठा के तुरंत सामने वो कोबरा के सामने से दूर चले गए. At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him. At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. और कोबरा ने जिस समय में उस मंगूस को वार करने वाला है नेक्स्ट टाइम, उसी समय मैना और कौवा ने उड़ के एक दूसरे के साथ धक्का मुक्का लगा दिए, एक दूसरे के साथ धक्का लगा दिए. ओके. और हवा के बीच में वो लोग ऐसे कर दिए. Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. और एक दूसरे को डांटने लगे, एक दूसरे को चिल्लाने लगे और ऐसे करते करते फिर से अपना अपना जगह में बैठ गए लड़ाई देखने के लिए. A few drops of blood glistened on the cobra's back. उस कोबरा के पीछे में 2-4 बूंद खून जो गिर रहा था वो चमक रहा था. मतलब सूरज का धूप उस कोबरा के शरीर से जो खून निकाला रहा था, क्योंकि मंगूस ने उसको काट दिया था और उस खून चमक रहा था धूप में. द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड. कोबरा क्या किया? वार करने गया मंगूस को, मगर मिस किया. अगेन द मंगूस sprang aside, jumped in and bit. और उसी तरह पहले जैसा हुआ था, मंगूस ने पीछे से आके कोबरा का फिर से शरीर में अपना क्या कर दिया? अपना दांत बैठा दिया, काट दिया. Again the birds dived at the snake. और उसी समय में उस सांप के ऊपर में 2 पंछी जो मैना कौवा फिर से आ गए. bumped into each other instead. और
वो लोग एक दूसरे के साथ धक्का लगा दिए एंड रिटर्न स्ट्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और फिर उड़ के अपना जगह पे बैठ गए। मतलब जब जब सांप ने मंगूस को काटने जा रहा है उसी समय दो पंछी उड़ के उसको, मतलब मंगूस को काटना पे उसका निशाना को दूसरे तरफ में लेने के लिए कोशिश की। ठीक है, मतलब कौवा और मैना का यही उद्देश्य था, जब नेवला को काटते हैं तो सांप का जो वार वो मिस हो जाए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विथ वन ड्रामेटिक डिफरेंस। तीसरा बार कोबरा ने जब वार करने गया तो एक ही जैसा होने वाला था, मगर थोड़ा अलग किस्म का एक नतीजा आया और वे नाटकीय एक मोड़ ले लिया। किस तरह हुआ? द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स डाइड एट द कोबरा। कोबरा जब वार करने गया तो मैना और कौवा ठीक उसी तरह पहले जैसा ही वो कोबरा को दूसरा तरफ बहलाने की कोशिश किए ताकि मंगूस को मार ना पे कोशिश किए। ओके, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। मगर इस बार कौवा और मैना जैसे बार बार एक दूसरे को लाग रहा था, अभी दोनों एक साथ लाग नहीं पाया और कोबरा के सामने में आके कुछ अलग किस्म कुछ हो गया। क्या होगा? द मैना फ्लेw ऑन एंड रीच्ड इट्स पार्ट्स। मैना उड़ के अपना जगह पे बैठ गया जहां पे थे वहां पे। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। और कौवा ने क्या किया? अपना शरीर को हवा में घुमा के वो जिस जगह से आए थे उस जगह में जाने की कोशिश किया। इन द सेकेंड दैट ही टुक द बर्ड टू डू दिस द कोबरा व्हिप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स। और जब कौवा ने मुड़ के अपना जगह में जाने की कोशिश की और उसी समय में कोबरा ने अपना जो डंक वो कौवा के ऊपर में लगा दिया, जितना ताकत था उतना ताकत से। He snout thudding against the crow's body। और अपना जो सांप का जो सामने वाला हिस्सा इतना जोर से कौवा को मारा। अब क्या हुआ देखते नतीजा। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden। और मैं देखा, मैं मतलब रस्किन बॉन्ड ने देखा, वो कौवा 20 फीट दूर में जाके गिरा। मतलब इतना जोर से कोबरा ने वार किया, जहर तो शरीर में चले ही गया और उसके साथ इतना दूर में जाके गिरा, 20 फीट दूर में जाके गिरा। It fluttered about for a while। कुछ हद तक वो पंख को झटपटाए, then rested। उसके बाद चुप हो गए। The myna remained on the cactus plant। मैना जिस जगह में था उस जगह में रह गया। And when the snake and the mongoose returned to the fight, फिर से जब कोबरा और नेवला ने लड़ाई चालू किया, very wisely decided not to interfere again। और वहाँ पे और कोई बीच में आने के कोशिश नहीं किए और कोई नहीं आए। The cobra was weakening and the mongoose walking fearlessly up to it। कोबरा धीरे धीरे कमजोर हो गए और नेवला अपना साहसी पैर रखते हुए धीरे धीरे कोबरा की तरफ बढ़ने लगे। Raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout। और अपना छोटे छोटे पैर के ऊपर में वो खड़े हो गए और उस सांप को अपना मुंह में ले लिए। The cobra writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail। कोबरा क्या किए? डर के मारे वो कुछ हद तक झटपटाए और उस नेवला के शरीर के चारों ओर में अपने आप को मोड़ दिए, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। किसका? मंगूस का कोई असर नहीं हुआ और कुछ फायदा भी नहीं हुआ उस सांप को। The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle। और छोटा सा मंगूस जो है वो उस सांप को बहुत देर तक ऊपर में झुला के रखे और हिलाते रहे जब तक ना सांप का अंत मतलब अंतिम सांस
না গিরে। He then sped along its quivering length, gripped it round the hood, and dragged it into the bushes. उसके बाद क्या किए, उस चेहरा मतलब उस सांप का जो बड़ा सा चेहरा जितना सा लंबाई था वो अपना हुड को लेके मतलब सांप का जो फन उसके साथ पूरा शरीर को लेके खींच खींच के झाड़ी के अंदर में चले गए। कौन? मंगूस ने। द मोइना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, हॉप्ड अबाउट, धीरे धीरे मोइना उड़ के जमीन में आए और खुदक खुदक के सामने आए। पियर्ड इनटू द बुशेस, और झाड़ी के अंदर में झाके फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, मगर सुरक्षित दूरी से। एंड देन विथ ए श्रील क्राई ऑफ कंग्रेचुलेशंस फ्री अवे, उसके बाद बहुत खुशी के मारे जैसे चिल्लाते हम लोग उस तरह चिल्लाते हुए दूर में उड़ के चले गए। रस्किन बॉन्ड हैज रिटन दिस स्टोरी। दिस इज एक्चुअली स्टोरी फ्रॉम the small boy who is himself Ruskin Bond, and Ruskin Bond's grandfather had a large area with so many animals, okay, and there was forest area. Ruskin Bond's grandfather was forest ranger, and because of that Ruskin Bond had the opportunity to see the natural habitat, to see the plants, trees, animals, so many things, and this is one of the great observation of Ruskin Bond from the banyan tree, and that's why this story has been given the name the banyan tree, not the fight of mongoose and snake. Okay, I think there are so many difficult words which you need to understand, which you need to know the meaning, so I have made all the meaning for you. I will send in the group through snaps, and you need to understand the story from those word meanings which I will send through snaps, and you need to guess the inner meaning of the story. No need to think about the exercise question answer, but you must do those, okay? But for preparations of question answers from inside, that will be better, okay? You have already learned that in all the examination, all the tests, I am making questions from inside, so you need to know the story well, and that will be the great thing for you, okay? Then after understanding the story, you must do the exercise question answers, but you need to know the word meaning before the start of the story, okay? So this is the end of this class. Hope you understood the story well, and you would read the story again and again. And for the next class, bye bye all of you.